Very good evening, friends. Today we will be discussing CIRP regulations. Although we have already included most of the relevant portions in our PPT, but still we will go through the entire regulations because regulations are also in our syllabus and these are the favorite of examiners because most of the questions in MCQ come from these regulations. Regulations alone are covering 10 to 15 marks. Regulations are of 15 marks. IBC code is for 10 marks only. So these regulations, they are amended up to 31st December 2020. Last amendment was on 13th of November 2020. So these are the CIRP regulations coming into force on 1st of December 2016. Applicant as we know is one who files an application under section 7, 9 or 10. सोनी जी मेरी PPT नजर आ रही है ना? Yes, sir. Okay. And class of creditors. Class of creditors means a class with at least 10 financial creditors under class B of subsection 6A of section 21, and the expression creditors in a class shall be construed accordingly. So class of creditors means a class with at least 10 financial creditors. It says with at least 10 financial creditors. जस्ट मैं रेगुलेशंस पे निकाल लेता हूँ तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे. Code means IBC, code of conduct for IPs. Committee means committee of creditors, and CIRP means insolvency resolution process for corporate persons under chapter 2. Most of the things are self-explanatory or they have already been discussed while presenting section-wise coverage of IBC, but still we will go through the entire regulations one by one. Electronic form shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act. So question can be asked on this. Electronic form means what? And electronic means an authorized and secured computer program which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication. Because most of the information is required to be communicated through electronic means. So definition of electronic means is important. So electronic means an authorized and secured computer program which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication. Then evaluation matrix we have already discussed. Evaluation matrix means such parameters to be applied and the manner of applying such parameters as approved by the committee for consideration of resolution plan for its approval. We know that evaluation matrix basically contains some qualitative and quantitative characteristics, certain parameters which are approved by COC and which are applied for the purpose of evaluation of resolution plans. Then fair value. Fair value means the estimated realizable value of the assets if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction after proper marketing and where the parties had acted knowledgeably, prudently and without compulsion. अगर हम इंडियास पढ़ें तो इंडियास में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी डेफिनेशन है.
Then identification number means limited liability partnership number or SIN number in case of company. Insolvency professional entity means an entity recognized as such under the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Then liquidation value means the estimated realizable value of the assets of the corporate debtor if the corporate debtor were to be liquidated on the insolvency commencement date. Liquidation value को आपको मिलाकर के पढ़ना है किसके साथ? फेयर वैल्यू के साथ. फेयर वैल्यू means the estimated realizable value and this liquidation value is the estimated realizable value if the corporate debtor were to be liquidated on the insolvency commencement. ठीक है. फेयर वैल्यू में क्या है? Between willing buyer and willing seller in an arm's length transaction after proper marketing and where the parties are acted knowledgeably, prudently and without compulsion. ठीक. Participant means a person entitled to attend a meeting of the committee under section 24 or any other person authorized by the committee to attend the meeting. Then registered valuer, it means a person registered as such in accordance with the Companies Act 2013 and rules made thereunder. ठीक है. किसी ने ग्रुप में पूछा था कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स वैल्यूएशन रूल्स में है क्या? यस, दे आर इन द कोर्स. देन शेड्यूल मींस शेड्यूल टू दिस रेगुलेशंस एंड सेक्शन मींस सेक्शंस ऑफ द कोड. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो एंड विजुअल means such audio and visual facility which enables the participants in a meeting to communicate concurrently with one another and to participate effectively in the meeting. तो जहां पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल है तो ऑडियो प्लस विजुअल दोनों होने चाहिए. ठीक है. सिर्फ ऑडियो से काम नहीं चलेगा. एंड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड and not defined in the regulations but defined in the code shall have the meaning assigned to them in the code. ठीक है. आगे 2A, ये 2A थोड़ा रिसेंट एडिशन है. ये अभी 2A हमने एक्चुअली हमारे पास जो था वो अगस्त 2020 तक अपडेटेड था. तो 2A ये रिसेंट एडिशन आया 13 नवंबर 2020 को. इसमें क्या बोला कि रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो उस केस में क्या होगा? उसमें ही कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द रेलेवेंट अकाउंट इन द बैंकर्स बुक. ठीक है. एज डिफाइंड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट. वहां से लाओ या एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट हैज एडजुडिकेटेड अपॉन द नॉन पेमेंट ऑफ ए डेट वेयर द पीरियड ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर हैज एक्सपायर्ड. ठीक है. ये फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7. अब एक बार आप सेक्शन 7 भी खोल लीजिए. पर जब भी पढ़ना है आपको कोड साथ में रख के पढ़ना है. तो ये क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3. तो क्लॉज ए में क्या बोलता है? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज में बी स्पेसिफाइड. तो एज में बी स्पेसिफाइड में यहाँ पर इन्होंने रेगुलेशंस में स्पेसिफाई कर दिया. क्या बोला कि भाई आप सर्टिफाइड कॉपी ले आओ ऑफ एंट्रीज इन द रेलेवेंट अकाउंट in the banker's book as defined in clause 3 of section 2 of the banker's book evidence act. और दूसरा क्या है? an order of a court या tribunal that has adjudicated upon the non payment of a debt where the period of appeal against such order has expired. ठीक है. तो वहां जो स्पेसिफाइड था वो यहाँ रेगुलेशंस में स्पेसिफाई कर दिया. आगे बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है. ये हम जब हमने वहां पढ़ा था सेक्शन वाइज कवरेज, वहां पर भी इसको कवर कर चुके हैं. ठीक है. An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a resolution professional for a CIRP of a corporate debtor if he or and all partners and directors of the insolvency professional entity of which he is a partner or a director are independent of the corporate debtor. ठीक है. कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनी का आरपी कब बन सकता है? जब वो उसके सारे पार्टनर या डायरेक्टर्स, अगर वो एंटिटी में पार्टनर या डायरेक्टर है तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है. इंडिपेंडेंट कब माना जाएगा? एलिजिबिलिटी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट रिलेटेड पार्टी. ठीक है. रिलेटेड पार्टी कहाँ से पढ़ेंगे? 524 से. नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ ए फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, कॉस्ट ऑडिटर्स, लीगल कंसल्टिंग फर्म. ये पहले
परसेंटेज 10% थी, अब ये परसेंटेज हो गई है 5%। ठीक है, ये 5% किस डेट से हुई? ये हुई हमारी 4/7/2018 से। ठीक है, पहले ये परसेंटेज 10% थी, अब ये परसेंटेज 5% हो चुकी है। 5% का मतलब क्या है? 100 करोड़ आपकी टर्नओवर है। ठीक है, आपकी टर्नओवर समझ लीजिए कि 1 करोड़ है। ठीक है, यू आर ए कंसल्टिंग फर्म, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है। ठीक है, तो अगर इसमें से 5% या ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपको उसी कंपनी से आ रहा है जिस कंपनी में आप आरपी बनना चाहते हो, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं माने जाओगे और आप आरपी उस कंपनी में नहीं बन सकते। ठीक है, 5% से ज्यादा। और अगर रिप्लेसमेंट की बात आती है, वेयर द कमेटी डिसाइड्स टू अपॉइंट द आईआरपी एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिप्लेसमेंट ऑफ आईआरपी और रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 20, मतलब आईआरपी को आप जो है कभी भी रिप्लेस कर सकते हो, इनिशियली भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट शैल ऑब्टेन द रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड आरपी इन फॉर्म AA ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, तो फॉर्म AA दिया गया, जो नया आप जिसको आप प्रपोज कर रहे हो उसके लिए रिटन कंसेंट आपको फॉर्म AA में लेनी है। ठीक है, ये गुप्ता जी जो रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट में आईआरपी को तो रिप्लेस करते हैं, अगर आरपी को उन्होंने कमेटी, हाँ, दोनों वही ना, दोनों। देखिए, सेक्शन 22 की भी बात करता है, सेक्शन 27 की भी बात करता है। देखिए, एक तो ये होता है कि आईआरपी को पहली मीटिंग में ही रिप्लेस किया जा सकता है, जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी होती है। ठीक है ना, तो और उसके बाद में कभी भी किसी भी स्टेज पर, उसके बाद में वो आईआरपी से आरपी बन गया, 2-3 मीटिंग हो गई, उसके बाद में भी उसको रिप्लेस किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, यही सेक्शन 22 और 27 का फर्क है। एक मिनट, 22 और 27 एक बार दोबारा देख लेंगे साथ के साथ, उससे ना और क्लैरिटी आ जाती है। ये है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है, ये फर्स्ट मीटिंग की बात करता है। ठीक है ना, कि फर्स्ट मीटिंग में आप आईआरपी को आरपी बना दोगे। ठीक है, और 27 क्या कहता है? 27 ये कहता है कि रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब बाद में, एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी। ठीक है, ये दोनों में इतना ही फर्क है। 22 मतलब पहली मीटिंग में, 27 मतलब बाद में। तो जब भी आप और नए के लिए जो भी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उससे फॉर्म AA भरवा लोगे। ठीक, आगे चलते हैं। एंड ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल make disclosures at the time of the appointment and thereafter in accordance with the code of conduct. ठीक है, and a resolution professional who is a director or a partner of an insolvency professional entity shall not continue as a resolution professional in a CIRP if the insolvency professional entity or any other partner or director represents any of the other stakeholders in the same corporate insolvency resolution process. इसका क्या मतलब है? एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, जो कि डायरेक्टर है, पार्टनर है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, और उसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का दूसरा पार्टनर या डायरेक्टर किसी दूसरे स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे स्टेक होल्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मान लो कोई कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंस है, बैंकर ने उसको अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, तो वो नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि भाई एक साइड में ये बैठा है, दूसरी साइड में दूसरा इसी का पार्टनर या डायरेक्टर बैठा। ठीक है, एक्सेस टू बुक्स। एक्सेस टू बुक्स क्या कहता है कि भाई आप जो भी आईआरपी है, ही विल हैव एक्सेस टू बुक्स एंड अदर रिलेवेंट। डिपॉजिटरी के पास कोई है, मान लो एनएसडीएल में किसी का अकाउंट था, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर कॉर्पोरेट डेटर के कोई प्रोफेशनल एडवाइजर थे, उनसे ले सकता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से। अदर रजिस्ट्रीज दैट रिकॉर्ड द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जैसे एमसीए है, या फिर सरफेसी में सरसाई होती है, इस तरह से, या मेंबर्स, प्रोमोटर्स, पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल काउंटर पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो इन सब से जो है आईआरपी he will have access to books of accounts, records and other relevant document and information to the extent relevant, ठीक है, for discharging his duties under the code of the corporate debtor
हेल्ड विद, इनके पास जैसे मान लो किसी डिपॉजिटरी के पास उसका अकाउंट होगा तो उसको कहेगा भाई इस पार्टी का मुझे अकाउंट दो, इस तरह से। फिर चॉइस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या है कि ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा द IRP शैल असर्टेन क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा? फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास असर्टेन्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 इन द कमेटी द IRP शैल आइडेंटिफाई 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। 3 चॉइस दे देता है वो। ठीक है, जो भी RP है वो क्या करता है, IRP 3 चॉइसेस दे देता है, जो कि उसके लिए क्या है, उसके रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, किसके, IRP के। ठीक है, और उनका एड्रेस जो एज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड है वो उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इनको सेलेक्ट कौन कर रहा है, IRP। किस बेसिस पे कर रहा है, एक तो उसके रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, फिर उनका जो एड्रेस है वो उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। और मान लो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एडिक्वेट नंबर ऑफ IP नहीं है तो फिर नियर बाई स्टेट से वो देख लेगा। ठीक है, क्या होता है, इतनी डिटेल में हम जब सेक्शन वाइज कवरेज करते हैं वहां पर कवर नहीं कर पाते। मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो वहां पर भी कवर्ड है चीजें, लेकिन इन रेगुलेशंस को एक बार पढ़ना जरूरी है। और मैंने ये ठीक समझा, मैं कहा इसके पहले कि हम इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म पे जाएं, CIRP और लिक्विडेशन को ही अच्छी तरह खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर चलेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ जी। एंड एलिजिबल टू बी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अंडर रेगुलेशन 3, मतलब वो जो AR है वो लोग भी, उनकी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनने की, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड IRP विल ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ईच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेगा और उनकी कंसेंट ले लेगा फॉर्म A-B में। ठीक है, तो फॉर्म नंबर भी पूछ लेते हैं कि कौन से फॉर्म में कंसेंट लेगा, तो ये चीजें याद रखने वाली है। गुप्ता जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 AR? मतलब नहीं, 3 में से एक सेलेक्ट करना ना जी, 3 में से एक, वो ऐसा है 3 चॉइसेस दे देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, वो आगे आएगा, आगे ये आएगा, 3 में से एक सेलेक्ट करना जिसको भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, आगे आएगा, पढ़ेंगे। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड एक्सटॉर्शनेट कब होगी, अगर इफ इट रिक्वायर्स द कॉर्पोरेट डेटा टू मेक एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइडेड। ठीक है, और हमने एक्सटॉर्शनेट में ये भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल डेट में भी हो सकती हैं, ऑपरेशनल डेट में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल डेट में तो ये देखेगा कि भाई एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट तो नहीं हो रही इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट, आपने लोन दिया इतना और कह दो जी 36% या 48% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो वो तो उसके लिए हो गई फाइनेंशियल डेट। जो ऑपरेशनल डेट है उसमें क्या हो गया, आर अनक्वेश्चनेबल अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो आम आदमी को समझ में नहीं आती, कि मतलब आम आदमी की कॉन्शियस से बाहर की चीज है, जो भी प्रूडेंट आदमी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा वो सारी एक्सटॉर्शनेट में आ जाएगी। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट की बात आती है। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो IP है ही विल मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली। अब इमीडिएटली का क्या मतलब है, मीन्स नॉट लेटर देन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, और ये पब्लिक अनाउंसमेंट कौन से फॉर्म में होगी, ये फॉर्म A में होगी। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया फॉर्म A। फॉर्म A किसके लिए, पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए। एक फॉर्म AA पढ़ लिया हमने। ठीक है, AA में क्या ले रहा है, ये जो है अपना ये ले रहा है इसके लिए रिटर्न कॉन्सेंट ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये फॉर्म AA में। और A-B हमने पढ़ा था, A-B किससे कॉन्सेंट ले रहा है, ये ले रहा है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, और इस पब्लिक अनाउंसमेंट को करना कहाँ पर है, एक इंग्लिश में और एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेशन एट द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड एनी अदर लोकेशन वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द IRP द कॉर्पोरेट डेटर कंडक्ट्स मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसको वाइड सर्कुलेशन करना है। फिर अगर कोई वेबसाइट है कॉर्पोरेट डेटर की, वहां पर भी, और जो वेबसाइट डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड है उस पर भी ये पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ पर होना। इस पर भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं। BA में कहता है, और वहां पर ये भी लिखा जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट में कि
स्टेट वेयर क्लेम फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड। तो क्लेम फॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये भी वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हमारा चल रहा है, अच्छा ये स्टेट वेयर क्लेम फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एज द केस मे बी, ये पब्लिक अनाउंसमेंट में है। फिर ऑफर चॉइस ऑफ 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाइड अंडर रेगुलेशन 4A, तो 3 के लिए चॉइस दे देगा, भाई इनमें से चुन लो, ठीक है। प्रोवाइड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम, 14 डेज होता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा। लिक्विडेशन में 30 डेज होता है, इंडिविजुअल्स में 27 डेज होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड द एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट विच मे बी रिइंबर्स्ड बाय द कमेटी टू द एक्सटेंट इट रेटिफाइज, ठीक है। तो एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट कौन होगा, सेक्शन 7 में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा, सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर होगा, और अगर सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन है तो सेक्शन 9 में फिर क्या होता है कि नॉर्मली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि भाई इसको रिम्यूनरेशन कितनी दी जाएगी, नॉर्मली 2 लाख पर मंथ वो अवार्ड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रूफ ऑफ क्लेम्स। प्रूफ ऑफ क्लेम्स में ये क्लेम्स बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है अदर देन वर्कमैन या एम्प्लॉई। गुप्ता जी पॉइंट था, हाँ जी, ये पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी मेड विद इन 3 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट एज आईआर। हाँ इमीडिएटली मैक्सिमम विद इन 3 डेज, हाँ विद इन 3 डेज। और उससे पहले उसने तीन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की वो चॉइस भी करनी है, तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 3 दिन में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी वो कर लेगा, बिकॉज उसको पब्लिक अनाउंसमेंट में देना होता है उसको। नहीं, वो बाद में आएगा कि वो लेट भी हो सकता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाद में हम पढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा आगे आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये अगर इसमें डिले होता है तो इससे ये प्रोसेस इफेक्ट नहीं होगा। प्रूफ ऑफ क्लेम्स में आता है क्लेम्स बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन और एम्प्लॉई, ठीक है, विल सबमिट क्लेम विद प्रूफ, इसमें लिखा है शेल, ठीक है, टू द IRP इन पर्सन, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक। इसको तीनों ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। कई जगह पर क्या है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर उसको ये बाय पोस्ट या ये अपना इन पर्सन वाली ऑप्शन नहीं दे रखी। इसमें जो वर्कमैन या एम्प्लॉई है तो ये कहता है ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन और एम्प्लॉई, ठीक है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है चाहे वो वर्कमैन या एम्प्लॉय के अदर देन है, उसमें भी 3 ऑप्शन दे रखी है। इसको हमें इस तरह से पढ़ना है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर में कौन कौन सी ऑप्शन है, फाइनेंशियल में कौन सी ऑप्शन है, ठीक है। ये पहला हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन या एम्प्लॉय, इनके पास 3 ऑप्शन है, इन पर्सन दे दो, बाय पोस्ट दे दो और इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि उसका नाम एड्रेस भी होता है उसका, ये जो होता है ना IRP या इलेक्ट्रॉनिक में। इसका फॉर्म क्या है, फॉर्म B है, ठीक है। फॉर्म A क्या था, पब्लिक अनाउंसमेंट। हमें साथ मन में रिवाइज करते रहना है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन में सबमिट सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। मान लो पूरी चीज को नहीं दे पाता हूँ तो बाद में जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है या क्लैरिफिकेशन वो बिफोर COC कॉन्स्टिट्यूट जब होती है उससे पहले दे सकता है, ठीक है। और ये ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात है तो ये कैसे प्रूव करेगा, ये प्रूव ऐसे करेगा अगर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का कोई रिकॉर्ड है या कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है, इनवॉइस है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट है या फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें भी 2 चीजों में फर्क है। एक तो होता है प्रूफ ऑफ क्लेम, प्रूफ ऑफ डेट, और दूसरा है प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। कई बार हम लोग इस चीज में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करनी है हमारे को। ये हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं प्रूफ ऑफ डेट, ठीक है, कि वो कैसे प्रूव करेगा। अगर हमें प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि ये वाले डॉक्यूमेंट लगेंगे। कई बार क्या होता है हम इस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं, भाई ये रेगुलेशंस में तो ये लिखा है प्रूफ ऑफ डेट के लिए, प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट के लिए नहीं लिखा, ठीक। आगे चलते हैं। क्लेम्स बाई, मतलब एक लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना है। क्लेम्स बाई फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है अदर देन ए फाइनेंशियल क्रेडिटर बिलोंगिंग टू ए क्लास ऑफ, इसमें भी दो पार्ट कर दिए। एक तो हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरे हो गए बिलोंगिंग टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर। बिलोंगिंग टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर कौन से होंगे, मान लो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, या डिपॉजिट होल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में वो फिर एक पर्टिकुलर क्लास में आ जाएंगे। दे शैल सबमिट क्लेम विद प्रूफ IRP इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म C, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अदर देन वर्कमैन फॉर्म B, पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर्म A, फाइनेंशियल क्रेडिटर अदर देन बिलोंगिंग टू ए क्लास फॉर्म C,
ठीक है। और इन्होंने कैसे प्रूव करना है अपना एग्जिस्टेंस ऑफ डेट में भी प्रूव। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डेट की, डेट को प्रूव करना, डेट के डॉक्यूमेंट है, डिफॉल्ट के डॉक्यूमेंट नहीं है, डिफॉल्ट के डॉक्यूमेंट अलग होंगे। मे बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होगा, कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दे देगा सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, as evidence of debt and a record evidencing that the amount committed by the financial creditor to the corporate debtor under a facility has been drawn by the corporate debtor। मान लो सीसी फैसिलिटी थी तो उसने विड्रॉ कर लिया, वो बता देगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग दैट द डेट हैज नॉट बीन पेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देगा। एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट इज एडजुडिकेटेड अपॉन द नॉन पेमेंट ऑफ अ डेट। तो इनमें से किसी से भी वो डेट का अपना प्रूफ दे देगा। फिर क्लेम बाय क्रेडिटर्स इन ए क्लास, ये a person claiming to be creditor in a class shall submit claim with proof to the IRP in electronic form in form CA, ठीक है। ये दोनों के लिए हो गया creditors in a class। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट ये कहाँ से होगा, रिकॉर्ड अवेलेबल अदर और एग्रीमेंट फॉर सेल दे सकता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट मेड एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। इसके लिए फॉर्म CA है। एंड ए क्रेडिटर इन अ क्लास में इंडिकेट इट्स चॉइस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। रुस्तगी जी आपका आंसर यहाँ पर आ गया कि जो 3 है, 3 में से क्या होगा, ए क्रेडिटर इन अ क्लास में इंडिकेट इट्स चॉइस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फ्रॉम अमंग द 3 चॉइसेस प्रोवाइडेड बाय द IRP इन द पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्ट एज इट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अभी पार्ट आंसर आया, पार्ट आंसर और आगे आएगा। तो 3 में से वो चुनेगा कि भैया कौन सा उसका प्रेफर्ड है, ठीक है, वो अपनी चॉइस बता देगा। उसके बाद क्लेम बाय वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज, ये जो वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज है इनके लिए फॉर्म D है, ठीक है, और बाद में भी दे सकते हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC। और अगर बहुत सारे वर्कमैन हैं या बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर्म दे सकता है फॉर्म E में, ठीक है। कोई ट्रेड यूनियन है इस तरह से, या कोई एसोसिएशन है ऑफिसर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूज टू वर्कमैन और एम्प्लॉयज मे बी प्रूव्ड अच्छा। एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूज, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। एक तो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देगा वो एम्प्लॉयज के किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या एविडेंस ऑफ नोटिस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ अनड्यूज अनपेड ड्यूज या एनी अदर डॉक्यूमेंट, या ऑर्डर ऑफ कोर्ट दे देगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आ गया जी क्लेम्स बाय अदर क्रेडिटर्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ये अदर क्रेडिटर्स है। ए पर्सन क्लेमिंग टू बी ए क्रेडिटर अदर देन दोज कवर्ड अंडर रेगुलेशन 7, 8 और 9। 7, 8 और 9 में किस किस की बात की उसने, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने क्लास की बात की, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात की, ऑपरेशन और उसके अलावा वर्कमैन और एम्प्लॉयज की बात की। उनके अलावा बाकी जो बचे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे अपने। तो ये क्या करेंगे, इनके लिए भी फॉर्म F है, ठीक है। और फॉर्म F किसके लिए था, ये E था फॉर्म जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और ये फॉर्म F हो गया अदर क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है। और ये भी सेम सी ही बातें हैं इसमें कि ये डॉक्यूमेंट देंगे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, फिर सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स। जो RP जो है IRP वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। सुदेश जी का क्वेश्चन, सुदेश जी का क्वेश्चन था, सुदेश जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सुदेश जी का कल क्वेश्चन था कि भाई अब ये रिजेक्ट करेगा या क्या करेगा, उसका आंसर आने वाला है, उसका आंसर यहीं पर ही आएगा। उसमें ये है कि ये दोनों चीज़ें लिख देगा, भाई कितना उसने क्लेम किया, कितना मैंने एक्सेप्ट किया, ये दोनों चीज़ें दे देगा COC। आगे आप आंसर आएगा। यही पूछ रहे थे आप या कुछ और? हाँ सुदेश जी। सर एक क्वेरी था। हाँ पूछिए पूछिए। सर थोड़ा सा पीछे वाला स्लाइड में जाइए ना एक बार। हाँ बोलिए। एम्प्लॉयज को लेके। हाँ ठीक है।
सर देखिए, claims and a person claiming to be a workman or an employee, so मतलब इसके लिए he has to submit a proof and प्रूफ देगा ना, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया ना, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास तो ऑलरेडी एम्प्लॉय लिस्ट होगा, देन व्हाई अगेन समबडी हैज टू प्रूव इट? नहीं भाई, कंपनी तो क्या है, कंपनी बंद पड़ी है, कंपनी वो उसके डायरेक्टर जेल में है, आईआरपी को क्या पता आप एम्प्लॉय हो कि नहीं हो। आप ऐसे एज्यूम करो ना कि डायरेक्टर्स हैं नहीं। ओके हाँ ओके भाई, कंपनी बंद पड़ी है, वो उस केस में क्या होगा, ये अपने आप ही ये प्रूफ देंगे ना ये चीज। and if in case some employees actually started getting employed in some other place, in that case also can he claim? Why not? Actually this is for the period, लिखा ना, for the period for which such workman or employee is claiming dues. He must not be claiming for now, no, he must be claiming for the period when he served. Yeah, so the onus always rests with the employee only to come forward and then prove it and then get the money. No, it's not like that. Actually, sources could be different. IRP, if he gets hold of the books of accounts, then definitely. If he gets hold of the salary register, then naturally claims could be processed that way also. But in regulations, they have to provide for everything. Na? So it is naturally someone who is claiming, he has to give proof. Suppose somebody does not claim, even then it's that claim might be included based on the records available with the RP. Suppose some employee, he has gone abroad, he was in this company for a particular period, but when this company closed down, he left the job and went abroad. Even then his claim might be included, although he is not claimed. But if such records are available with the IRP, it's not that only those who have claimed money will be, their claims only will be included. Even if you have not claimed, even then your claim might be included if IRP or RP is having some evidence. But naturally, because all these things are subject to adjudication, so naturally some sort of proof is required. So this is in a way like, आपके पास employee register होगा, company के पास जो last employee register whatever is there. So in that way, the process of claims can be done, but then in case somebody else comes up, so the cross matching may happen, and then the process of submission yes, of वही है भाई, डिपेंड करेगा ना। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट सफिशिएंटली, आगे चलते हैं। ओके सर एक छोटा सा क्वेरी और था। हाँ पूछिए। सर इसमें जैसे आपने बोला ना मोर देन ज्यादा वर्क मैनेजर एम्प्लॉई है, तो एआर वो ऊपर वाला ही एआर आ गया ना, कि इनका कोई एआर होगा? कौन सा? जैसे वेयर देयर आर ड्यू टू वेरियस वर्कमैन और एम्प्लॉई ऑफ द सीडी एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में सबमिट क्लेम, वो जो एआर ऊपर 3 दिए उसमें से आएगा ना? नहीं, वो जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है ना, वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स आपके वो सेक्शन 21 के हिसाब से है। उसमें बेसिकली डिपॉजिट्स के लिए है और होम बायर्स के लिए है। इनके भी यहाँ पे तो ये ट्रेड यूनियन दे रही है ना, ये अलग चीज है, ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ये अलग चीज है, ये अलग है, वो अपना ही चूज करेंगे सर। हाँ अपना, ये जो उनकी एम्प्लॉय एसोसिएशन है या ऑफिसर एसोसिएशन है उसमें से चूज करते हैं। ये उनके बिहाफ पर ये यहाँ जाएगा, ये वो अलग है, ये अलग है, दोनों एक नहीं है। वो जहां पर बात करेगा वो बात करेगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, वो ऐसा लिखता है पूरा, क्लेम्स बाय अदर क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इनके लिए भी वही स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। फिर IRP they may call for additional evidence, ठीक है। And a creditor shall bear the cost of proving the debt due to such creditor, ठीक है। Suppose a creditor wants to prove that I have got some charge of property, so then he'll obtain a copy of the charge from MCA records and he will bear the cost of proving the same. अगला submission of proof of claims। सर 9A पे क्वेश्चन है सर। 9A, हाँ पूछिए। अदर क्रेडिटर्स में, हाँ अदर क्रेडिटर्स में दिया है सर कि ये सबमिट करेंगे अपना क्लेम IRP को या RP को, और बाकी सब में लिखा है केवल IRP को करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है टू द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन पर्सन, और बाकी सब में केवल IRP दिया है सर। वो तो जो लिखा वैसे पढ़ना है आपको। नहीं पढ़ना तो है सर, लेकिन यहाँ पे RP अभी आया ही कहाँ है? RP तो नहीं आया, ठीक है।
वो तो देखो ऐसे है, वैसे तो वहां पर भी बाद में भी दे सकते हो। अगर किसी का छूट गया तो बाद में लिखा है, आगे आएगा वो भी, कि किसी का छूट गया तो वो आरपी को भी दे सकते हो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, वो लिखा तो उसमें। जी सर, जी सर। वो वहां पर क्या लिखा है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, ये लिखा है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी आप क्लेम नहीं सबमिट कर सकते, बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कि उससे पहले जो डिसीजन हो जाएंगे सीओसी के, उसमें आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इतनी बात है। क्लेम कभी भी आ सकते हैं, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने थोड़ा नोटिस किया कि ये थोड़ा अलग वो बात ठीक है, बिल्कुल बात आपकी सही है, योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट वो ऐसा जैसा लिखा है वैसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन ऑल्दो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, फर्क कुछ नहीं है, दोनों चीज में कभी भी क्लेम आ सकते हैं। आगे चलते हैं, सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स। ये क्या है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 2, ए क्रेडिटर शैल सबमिट क्लेम विद प्रूफ ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन्ड इन द पब्लिक अनाउंसमेंट। 14 दिन का टाइम होता है, ठीक है ना, तो 14 दिन के अंदर उसको सबमिट करना है। अब जिसने 14 दिन में सबमिट नहीं किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, वो आईआरपी या आरपी को दे देगा। कब दे देगा, बिफोर द 90th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। आ गया ना सुदेश जी आपके जवाब का आंसर का, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो वो ये कहता है कि सब आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि 90th डे तक वो अपना क्लेम सबमिट कर सकता है, आईआरपी या आरपी। और where the creditor in sub-regulation 2 is a financial creditor under regulation 8, it shall be included in the committee from the date of admission of such claim। ठीक है भाई, पहले उसने अपना क्लेम नहीं दिया था, तो पहले वो कमेटी में शामिल नहीं था, तो जब उसने दिया तब उससे कमेटी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, इतना सी बात। प्रोवाइडेड दैट सच इंक्लूजन, और वो जो पहले डिसीजन है वो इफेक्टेड नहीं होंगे नेचुरली। फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन, 14 दिन प्लस 7 दिन, ठीक है। वो जो इमीडिएटली लिखा था ना पब्लिक अनाउंसमेंट, तो पब्लिक अनाउंसमेंट के जो 3 दिन है वो इसमें काउंट नहीं हो रहे, ठीक है ना, 3 दिन अलग से नहीं मिल रहे, वो टी में ही आ रहे हैं। टी प्लस 14, 14 दिन क्लेम के और 7 दिन इनके, 21 विद इन 7 डेज। और ये भी मैक्सिमम पीरियड है, मतलब इससे पहले भी हो सकता है। विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द रिसीट ऑफ द क्लेम्स एंड देयर अपॉन मेंटेन ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, वो सारी लिस्ट बना लेगा। अब यहाँ पर वो जवाब आ जाएगा आपका, आपके वेरिफिकेशन वाला, लिक्विडेटर और इसमें क्या फर्क है। नेम्स ऑफ क्रेडिटर अलॉन्ग विद द अमाउंट क्लेम्ड बाय देम, एक अमाउंट में एक कॉलम बना देगा, उन्होंने क्या क्लेम करा, एक बना देगा एडमिट क्या हुआ, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स एंड अपडेट, उसको बाद में अपडेट करता रहेगा, दोनों चीजें पेश कर देगा। एंड द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर इट विल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द पर्सन हु सबमिटेड प्रूफ ऑफ क्लेम, जिसने प्रूफ सबमिट किया है उसको भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। मेंबर्स, पार्टनर्स, ये सबको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। डायरेक्टर्स एंड गारंटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। और ये सीए, ये नया इंसर्ट किया है 13/11/2020 को। इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा है इट विल बी फाइल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ द बोर्ड फॉर डिसमिनेशन ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि ये बाद में आया तो ये उन पर लगेगा जो CIRP पहले चल रही थी या जो कमेंट्स हो रही हैं ऑन और आफ्टर 13/11/2020, उनके लिए है, ठीक है। और डी क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ फाइल करना है, एंड इट विल बी प्रेजेंटेड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द COC। क्या पढ़ रहे थे हम, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एक तो अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रहेगी, मेंबर्स, पार्टनर, डायरेक्टर, ठीक है, जो मर्जी देखो उसको, गारंटर वेबसाइट पर भी डिस्प्ले कर देंगे अगर कंपनी की वेबसाइट है तो, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है फॉर डिसमिनेशन ऑन इट्स वेबसाइट, वहाँ पर भी ये डिस्प्ले हो जाएगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ फाइल कर देंगे और फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर मान लो कोई किसी क्रेडिटर का क्लेम प्रिसाइजली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, क्लेम नहीं हो सकता, कोई कॉन्टिजेंसी है, ठीक है ना, तो IRP ये क्या करेगा, विल मेक बेस्ट एस्टिमेट, और बेस्ट एस्टिमेट के बेस पे कर लेगा, ठीक है। एंड IRP या रेजोल्यूशन प्रोविजनल वो बाद में ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम, इसको जो क्लेम एडमिटेड है उसको रिवाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग द एस्टिमेट ऑफ क्लेम्स एज सून एज मे बी प्रैक्टिकल व्हेन ही कम्स अक्रॉस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेट इन फॉरेन करेंसी है तो ये एक्सचेंज रेट पर एज ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट क्या है, इट इज द रेफरेंस रेट पब्लिश्ड बाय RBI, ठीक है। आगे चलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है भाई। अगर फाइनेंशियल
क्रेडिटर्स हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही सीओसी को कंस्टिट्यूट करते हैं। पर मान लो कोई फाइनेंशियल डेट है ही नहीं, कोई डेट फ्री कंपनी है, या जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है सारे के सारे रिलेटेड पार्टी हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी है उनको कोई वोटिंग पावर नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर कोई फाइनेंशियल डेट नहीं है या ऑल दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दे आर रिलेटेड पार्टीज, तो कमेटी कैसे होगी? कमेटी इस तरह से बनेगी, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, ठीक है। मान लो 18 से कम है तो कम, फिर सारे शामिल हो जाएंगे नेचुरली, ठीक है। अगर 18 से ज्यादा है तो फिर 18, टॉप 18, एंड वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड अंडर सब क्लॉज ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 18 में भी, भाई यहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात कर रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में वर्कमैन भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है। अगर वो सब क्लास ए में शामिल हो गए, मान लो किसी दूसरे आदमी का भी कुछ नहीं देना, सिर्फ एम्प्लॉयज का ही देना है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयज ही आ जाएंगे ना उस कमेटी में, ठीक है, जिनकी 18 लार्जेस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड अंडर सब क्लास ए, अगर उसमें भी कोई शामिल हो गए तो उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉयज अदर देन दोज एम्प्लॉयज इंक्लूडेड इन सब क्लास ए, ठीक है। ए मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर्म शैल हैव वोटिंग राइट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेट, ठीक है। तो इसका वोटिंग राइट होगा इन प्रोपोर्शन टू द डेट। और टोटल डेट क्या होगा इसमें? टोटल डेट होगा अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू द क्रेडिटर्स लिस्टेड इन सब रेगुलेशन 2A, ठीक है, 2A मतलब 18 लार्जेस्ट, एंड द अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट डेट ड्यू टू वर्कमैन अंडर सब रेगुलेशन 2B एंड द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डेट ड्यू टू द एम्प्लॉयज अंडर रेगुलेशन 2C, ठीक है। तीनों का डेट इंक्लूड कर लेंगे, भाई कितना कितना इनको देना है, ठीक है। और टोटल डेट में क्या शामिल होगा? कई लोग पूछते हैं कि टोटल डेट में क्या शामिल होगा। यहाँ टोटल डेट में 3 चीजें शामिल होंगी, जो इनको देना है, जो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर है, या फिर जो वन रिप्रेजेंटेटिव है जो इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन है अदर देन दोज, ठीक है, और एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज का। तो इन टोटल का, इन सबका जो ड्यू है वो इसमें टोटल डेट आएगा, ठीक है। एंड ए कमेटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन, committee formed under this regulation and its members shall have the same rights, powers and duties and obligations as a committee comprising financial creditors and its members as the case may be, ठीक है। तो जो उस कमेटी को पावर है वही कमेटी को है। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात आ गई। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में क्या कह रहा है कि यहाँ पर महेंद्र जी आपके सवाल का जवाब, द IRP shall select the insolvency professional who is the choice of the highest number of financial creditors in the class in form CA received under sub-regulation 1 of regulation 12 to act as the authorized representative of the creditors of the respective class, ठीक है। जिसको भी हाईएस्ट नंबर मिलेगा, जो चॉइस होगी वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द चॉइस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ऑथराइज्ड इन फॉर्म C received under sub-regulation 2 of regulation 12 shall not be considered। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कई ऐसे भी हो सकते हैं ना जो लेट कमर्स हो गए, बाद में आएंगे, बाद में आए वो कहेगा भाई हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो लिया नहीं, तो जो बाद में आए हैं उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैंने विद इन ब्रैकेट लेट कमर लिख दिया है इसमें, ठीक है, वहाँ नहीं लिखा हुआ रेगुलेशन में, मैंने लिख दिया आपकी याददाश्त के लिए, भाई लेट कमर्स को कंसिडर नहीं करेंगे उनकी चॉइस को। द IRP शैल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये IRP अप्लाई करेगा विद इन 2 days ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। 14 दिन क्लेम आने थे, 7 दिन में वेरिफिकेशन था, और 2 दिन में ये यहाँ पर अप्लाई कर रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 14 और 7 21 और 2 23, ठीक है। एनी डिले, ये यहाँ पर उस बात का भी जवाब आ गया कि भाई अगर ये अपॉइंट नहीं होता, डिले होता है तो क्या होगा? एनी डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी डिसीजन टेकन बाय द कमिटी। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड IRP शैल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इन ईच क्लास टू द रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग। जो भी AA से अपॉइंट होगा उसको वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इन ईच क्लास वो दे देगा, ठीक है। एंड IRP और RP विल प्रोवाइड एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इन ईच क्लास टू द रिस्पेक्टेड AR। तो मतलब ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है इनके लिए अब कम्युनिकेशन किससे होगा? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कौन कर रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। आगे क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन क्या कहती है?
ये तो हो गया। हाँ जी, क्लैरिफिकेशन ये कहती है द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव by he will act merely as a postman. He shall have no role in receipt or verification of claims. इसको तो क्लेम कौन पकड़ाएगा? इसको क्लेम पकड़ा देगा जो IRP या RP है, ठीक है ना। इसके ने कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना उनके साथ, उन्होंने इसको चुना है, क्रेडिटर्स ने इसको चुना है, इसने नहीं उनके साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस की इन रिसीट और वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। तो ही विल एक्ट एज ए पोस्टमैन ओनली। इसको यहाँ से लिस्ट मिल गई, AR जो IR है, IRP या RP ने इसको लिस्ट दे दी, भाई ये आपके लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है। इसने कंसेंट दे दी थी क्योंकि इसको फीस मिलेगी इस हिसाब से, अगर 10 से 100 है तो 15,000 रुपये फीस मिलेगी पर कमेटी, क्योंकि मीटिंग सारी ये अटेंड करेगा, ठीक है ना। वो क्रेडिटर्स नहीं अटेंड करेंगे जो क्लास ऑफ क्रेडिटर। अगर 100 से 101 से 1000 तक है तो 20,000 रुपये पर मीटिंग मिलेगी, और मोर देन 1000 है तो 25,000 रुपये पर मीटिंग मिलेगी, ठीक है। और ये जो IRP है या RP है, it will provide the electronic means of communication between the AR and the creditors। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और जो क्रेडिटर्स है, इसका काम क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है भाई क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं उनकी बात को RP तक पहुंचाना या IRP तक पहुंचाना। उसके लिए जो IRP या RP है, he will provide the electronic means of communication, उनके लिए एक email ID क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, कि भैया आप यहाँ से इसमें कम्युनिकेट करें। Voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt which includes an interest at the rate of 8%, ठीक है। तो अगर वोटिंग शेयर कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि वोटिंग शेयर कैसे डिसाइड होता है? फाइनेंशियल डेट के हिसाब से, ठीक है ना, और उसमें इंटरेस्ट आपका 8% पर होगा अनलेस ए डिफरेंट रेट हैज बीन एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है तो ठीक है, अगर कुछ ने लिखा तो 8% पे कर देंगे। किसकी बात हो रही है? इन ए क्लास की बात हो रही है, वोटिंग शेयर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास, ठीक है। एंड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसको इतनी फीस मिलेगी 15,000, 20,000 या 25,000। The authorized representative shall circulate the agenda to creditors in a class and may seek their preliminary views on any item in the agenda to enable them to effectively participate in the meeting of the committee। ये सर्कुलेट कर देगा एजेंडा टू क्रेडिटर्स इन ए क्लास, AR जो है, ठीक है, और उनके प्रीलिमिनरी व्यूज मांग लेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द क्रेडिटर्स शैल हैव अ टाइम विंडो ऑफ एटलीस्ट 12 आवर्स टू सबमिट देयर प्रीलिमिनरी व्यूज। वो कहेगा भाई देखो ये एजेंडा आइटम है, इस पे आप अपना मन बना लो पहले, ठीक है, 12 घंटे उसके लिए दिए जाएंगे। और जो एंड द सेड विंडो ओपन्स एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीक्स प्रीलिमिनरी व्यूज, ठीक है। ये 24 घंटे बाद खुलेगी प्रीलिमिनरी व्यूज सीक करने के बाद, ठीक है। पहले 12 घंटे खुलेगी टू सबमिट देयर प्रीलिमिनरी व्यूज, भाई जैसे आपस में बातचीत करके आप अपनी सलाह बना लो। फिर जो साइड विंडो इट ओपन्स एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीक्स प्रीलिमिनरी व्यूज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच प्रीलिमिनरी व्यूज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वोटिंग इंस्ट्रक्शंस बाय द क्रेडिटर। प्रीलिमिनरी व्यूज अलग है, वोटिंग अलग है। आगे उसके बाद में आती है कमेटी विद ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास। कोई ऐसा भी हो सकता है कि ना तो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना ही कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है, सिर्फ क्रेडिटर्स इन ए क्लास है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? उसमें सिर्फ कमेटी बनेगी ओनली ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं की कमेटी बनेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। अब IRP एक रिपोर्ट फाइल करेगा सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 2 days ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है, रिसीव्ड। तो 14 days प्लस 7 days प्लस 2 days। और IRP shall hold the first meeting of the committee within 7 days of filing of the report, ठीक है। उसको ये 30 दिन के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, और पहली मीटिंग कब करनी है? विदिन 7 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट। Where the appointment of इसको हम टाइमलाइन से जब और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं या तो मैं टाइमलाइंस पर ले चलता हूँ आपको पहले, बाद में फिर इसको कर सकते हैं। 16B है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या है, आप बीच बीच में टाइमलाइंस पर जाते रहिए और टाइमलाइन से इसको पढ़ते रहिए कि टाइमलाइन कहाँ कहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है।
मैं देखो CIRP कमेंस हो गए टी में, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट मैक्सिमम 3, T+3, सबमिशन ऑफ क्लेम 14, तो 14 में 3 नहीं जोड़े ये, ठीक है ना, क्योंकि वो टी में 14 जोड़े इन्होंने। फिर सबमिशन ऑफ क्लेम मैक्सिमम 90 डेज तक हो सकता है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम में क्या T+21, तो मतलब 14 दिन तो रिसीव होने के और 7 दिन का टाइम इसको मिल गया वेरिफिकेशन का, ठीक है, IRP को। और फिर एप्लीकेशन ये 2 दिन है, तो ये 2 दिन यहाँ मिल गए, 21 और 2 23 हो गए। फिर रिपोर्ट जो देनी है इसको 23 दिन के अंदर देनी है। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग करनी है आपको विद इन 7 डेज, 30 डेज में, ठीक है। और रेजोल्यूशन टू अपॉइंट RP बाय द COC, ये भी T+30 है। अभी तो हम यहीं तक पहुंचे, आगे दोबारा चलते हैं, वहीं चलते हैं। तो इसको जब आप देखते रहोगे बीच बीच में, तो इससे भी क्लैरिटी आपको आती रहेगी। अब यहाँ थे, where the appointment of RP is delayed and IRP shall perform the functions of the RP from the 40th day of the insolvency commencement date till a RP is appointed under section 22। मतलब एक RP मान लो हटा दिया, ठीक है भाई। 22 में क्या कहता है, 22 में कहता है पहली कमीटिंग में आप IRP को हटा सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर हटा दिया, नया कोई आया नहीं। जब नया नहीं आया तब तक ये जो है ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है, टिल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड। आगे चलते हैं, मीटिंग्स ऑफ द कमेटी। तो जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता है, या फिर अगर मेंबर्स ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ द वोटिंग चाहें तो तब भी बुलानी पड़ेगी, ठीक है। लिक्विडेशन से आप इसको मिलाना, लिक्विडेशन में शायद 50% है ना, जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है उससे आप टैली कर लेना। यहाँ पर 33 है, वहां पर शायद 50 है। आगे चलते हैं 19A में क्या कहता है, हमारा कहता है जी, सब्जेक्ट टू दिस रेगुलेशन ए मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 5 days नोटिस। मतलब 5 दिन का नोटिस देना है आपको, ठीक है, इन राइटिंग देना टू एवरी पार्टिसिपेंट एट द एड्रेस इट इज प्रोवाइडेड टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड सच नोटिस में बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट, बट इन एनी इवेंट बी सर्व्ड ऑन एवरी पार्टिसिपेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। मतलब ईमेल से तो देना ही देना है, ठीक है। ईमेल के अलावा आप उसको हैंड डिलीवरी बाय पोस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। कब देना है आपको, नॉट लेस देन 5 days नोटिस, और इसको रिड्यूस किया जा सकता है अप टू नॉट लेस देन 48 आवर। मिनिमम 24 आवर्स का तो देना ही पड़ेगा, और किसी केस में अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है तो उसमें 48 आवर्स का देना पड़ेगा, ठीक है ना। 48 आवर्स से कम आप नहीं कर सकते, नॉर्मली है नॉट लेस देन 5 days नोटिस। उसके बाद सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसमें क्या है, ए नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में बी सेंट टू द पार्टिसिपेंट थ्रू ईमेल। अब ईमेल में एज ए टेक्स्ट भी ईमेल हम भेजते हैं, हमें पता है, या तो एज ए टेक्स्ट भेज दो या एज एन अटैचमेंट भी भेज सकते हो। या अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन है आपने पेपर में अनाउंसमेंट कर दी तो उसका लिंक दे सकते हो आप, ठीक है, या URL का लिंक दे दोगे फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस, ठीक है। और जो सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन में ये चीजें आपको लिखनी है, नेम, प्लेस, टाइम और डेट। ये सब्जेक्ट लाइन में लिख देना है, क्योंकि पूरी कहानी कई लोग पढ़ते नहीं, तो वहीं से उसको पता चल जाए। नेम ऑफ द CD रहेगा, प्लेस रहेगा, इफ एनी, द टाइम, इफ एनी क्यों लिखा, इफ एनी इसलिए लिखा कि कई बार वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल में तो कोई प्लेस होगा नहीं, है ना। द टाइम एंड द डेट ऑन विच द मीटिंग इज शेड्यूल्ड। उसके बाद अगर कोई नॉन एडिटेबल अटैचमेंट है, तो अगर मान लो PDF में देनी है इसको, ठीक है ना, और उसके साथ आपको लिंक या इंस्ट्रक्शंस भी देना है फॉर डाउनलोडिंग रेलिवेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। भाई ये PDF का ये वाला वर्जन है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो, वो भी चीज़ इसमें देनी है साथ में, ठीक है। When notice or notifications of availability of notice are sent by an email, resolution professional, तो उसमें क्या है, ये भी कंफर्म करेगा, इंश्योर करेगा RP कि it uses system which produces confirmation of the total number of recipients emailed। भाई कितनों को ईमेल हो गई, ठीक है ना, किसको भेज दिया, और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड एंड एनी नोटिस ऑफ एनी फेल्ड ट्रांजेक्शन, तो फेल्ड ट्रांजेक्शन की भी रिपोर्ट आए उसमें इस तरह से। एंड सब्सिक्वेंट रीसेंडिंग शैल बी रिटेन्ड एज प्रूफ ऑफ सेंडिंग। एक बार अगर फेल हो गई तो दोबारा भेजेगा, दोबारा भेज दी तो मान लिया जाएगा कि सर्व हो गई, क्योंकि ईमेल आईडी उसने खुद दिया है। ईमेल आईडी जो क्लेम कर रहा है उसने खुद दिया, अगर वो खुद गलत दे देगा तो क्या कर सकता है, ये भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन जो है, भेज दिया सो भेज दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया बीच में। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसमें क्या है, कौन सा चल रहा है हमारा 20,
the obligation of the resolution professional shall be satisfied when he transmits the email, and he shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control. ठीक है. हेलो, हाँ मेरी वो मीटिंग चल रही है उसकी IBC की, कल भेजूंगा आपको सुबह. हाँ जी. The notice made available on the electronic link or URL shall be readable, and the recipient should be able to obtain and retain copies, and the resolution professional shall give the complete URL or address of the website and full details of how to access the document or information. भाई कई बार क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा भेजते हैं, मान लो डॉक्यूमेंट 25 पेज का है, ठीक है ना, उसने कहीं वेबसाइट पे दिया तो उस वेबसाइट का लिंक दे देगा वो यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज. If a participant other than a member of the committee fails to provide or update the relevant email address to the RP, the non-receipt of such notice by such participant of any shall not invalidate the decisions taken at such meeting. ठीक है. तो अगर कोई किसी को नहीं मिला, ये पार्टिसिपेंट है अदर देन ए मेंबर ऑफ द कमेटी. अब इसमें अदर देन ए मेंबर ऑफ द कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसीलिए तो उन्होंने लिखा ना भाई, हैंड भी दे सकते हो आप. लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो मेंबर ऑफ COC नहीं है, भाई बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मेंबर ऑफ COC नहीं होते, उनको भी नोटिस जाता है. कौन होते हैं वो लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना. और भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको नोटिस जाता है मीटिंग का, उनको वोटिंग राइट नहीं होता ना, वो कमेटी के पार्ट होते, ठीक है. तो अगर ऐसे लोगों को नहीं भी मिला तो उससे कोई डिसीजन अगर लिया गया तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा. इतनी सी बात है. आगे आता है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस फॉर मीटिंग. नोटिस में क्या होगा? नोटिस में ये रहेगा कि वेन्यू, टाइम एंड डेट, और ऑप्शन रहेगी भाई, उनको ऑप्शन देगा कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो या अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन से पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है. और नोटिस में भी ये रहेगा कि पार्टिसिपेंट में अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये अलग भी हो सकते हैं. जैसे सपोज there is a consortium funding, there is a consortium finance by 4 bankers, then each of the bank may appoint their authorized representative. This authorized representative is other than the authorized representative of a class of creditor. वो separate है, ये separate है, ठीक है. Provided that such participant shall inform the resolution professional in advance of the meeting of the identity of the authorized representative who will attend and vote at the meeting on its behalf. तो वो जो पार्टिसिपेंट है वो आरपी को इन्फॉर्म कर देगा एडवांस में कि ये बंदा मेरी जगह पे मीटिंग अटेंड करेगा. आगे नोटिस में क्या क्या रहेगा? जो मैटर डिस्कस करने हैं, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द मैटर्स, ठीक है ना, और इशू टू बी वोटेड अपॉन. एंड notice of the meeting shall state the process and manner for voting by electronic means and the time schedule including the time period during which the votes may be cast, ठीक है. फिर लॉगिन आईडी रहेगा, डिटेल्स ऑफ ए फैसिलिटी फॉर जनरेटिंग पासवर्ड एंड फॉर कीपिंग सिक्योरिटी एंड कास्टिंग ऑफ वोट इन अ सिक्योर मैनर. नॉर्मली इसके लिए क्या होता है कि आजकल ना कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, तो वो एजेंसीज को ये काम आउटसोर्स कर देती हैं कि वो वोटिंग कराती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और वो पूरा रिकॉर्ड इनको देती हैं. Provide contact details of the person who will address the queries connected with the electronic voting, ठीक है. फिर आगे आता है quorum at the meeting. quorum क्या होगा? Quorum होगा at least 33% of the voting rights are present either in person or by video conferencing or other audio and visual means, ठीक है. And this quorum may be modified in respect of any future meetings of the committee. आगे चलते हैं. अगर कोई मीटिंग कोरम की वजह से 33% तो हमारा कोरम हो गया, ठीक है. अगर कोई मीटिंग कन्वीन नहीं हो सकती तो उस केस में क्या होगा? मीटिंग shall automatically stand adjourned at the same time and place on the next day, ठीक है. और अगर दोबारा भी तो जब एडजर्न मीटिंग में जो भी मेंबर प्रेजेंट है वही कोरम है, ठीक है. मान लो 33% से भी कम आए तो जितने मान लो 20% आए वही कोरम है. द एडजर्न मीटिंग शैल बी कोरेट विद द मेंबर्स ऑफ द कमेटी अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है.
फिर उससे आगे आता है पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कैसे होगा? नोटिस में क्या होगा? इट विल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स। ठीक है, ही विल मेक necessary arrangement to ensure uninterrupted and clear video or audio and visual connection. He will take due and reasonable care to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures, availability of proper video conferencing, other body, फिर ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब ये करेगा। सर हाँ जी सर, कोरम के लिए तो केवल सीओसी के जो मेंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे, जो अदर बिल्कुल नेचुरली जिनका वोटिंग राइट है, नेचुरली वही है। हाँ, जिनका वोटिंग राइट ही नहीं उनको क्या काउंट करना। और अगर सीओसी में मान लिया एक ही फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वही है बस। हाँ ठीक है ना, 33% ऑफ द वोटिंग राइट। हाँ जी हाँ, तो वोटिंग राइट ही उनको है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर 18 लार्जेस्ट उनको है, वो है। वो तो हमने पढ़ ही लिया ना पहले, आगे देखिए जी। ठीक है जी। उसके अलावा ये भी इंश्योर करेगा कि कोई दूसरा आदमी अटेंड ना करे, ठीक है ना। और अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उसमें ही कहेगा किसी आदमी को दूसरे को भी अलाउ कर देंगे, वो अटेंड कर ले, ठीक है। वेयर मीटिंग इज कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मींस दो शेड्यूल्ड वेन्यू एज सेट फॉर्थ इन नोटिस शैल बी इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ द सेड मीटिंग। ठीक है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो वेन्यू क्या होगा? वेन्यू जो प्लेस होगा इन इंडिया, वही जैसे नॉर्मली आरपी का एड्रेस होता है, ठीक है ना, वो दैट विल बी डीम्ड टू बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। कंडक्ट ऑफ मीटिंग कैसे होगा? आरपी जो है वही चेयरपर्सन होगा, ठीक है। सबसे पहले वो रोल कॉल लेगा। जैसे स्कूल में क्लास आती, टीचर आता है तो वो पहले रोल कॉल लेता है ना, तो वो हर एक को कहेगा भैया अपना नाम बताओ और आप किस कैपेसिटी से आए हो, आप यहाँ आए किस लिए, whether he is attending in the capacity of a member of the committee or any other participant, whether he is representing a member or a group of members, ठीक है। और लोकेशन कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हो, that he received the agenda and all the relevant material, that no one other than him is attending or has access to the proceedings of the meeting, ठीक है। ये भी सब उससे पूछ लेगा। अब रोल कॉल लेने के बाद में वो पार्टिसिपेंट्स को बताएगा कि भाई ये लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और बताएगा कि क्या कोरम प्रेजेंट है, कोरम कंप्लीट है, ठीक है। और ये कोरम जो है इट शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ऐसा नहीं कि कोई बीच में छोड़ के चला गया, ठीक है। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग टिल इट्स कंक्लूजन नो पर्सन अदर देन द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना। तो जिसकी भी प्रेजेंस चाहिए उसके अलावा बाकी को एक्सेस नहीं दी जाएगी, ठीक है। और मिनट्स बनाएगा ये और सर्कुलेट करेगा विद इन 48 आवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। वोटिंग बाय द कमेटी कैसे होगी? द एक्शंस लिस्टेड इन सेक्शन 28(1). 28(1) में कौन से एक्शन थे? 28(1) में सीओसी क्या करती है? सीओसी कह देती है कि भैया 66% मेजोरिटी से ये डिसीजन लेना, ठीक है। रेजिंग इंटरम फाइनेंस एंड एक्सेस ऑफ द अमाउंट अलाउड बाय सीओसी, ठीक है ना। ये सारे डिसीजन है, चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो 28(1) में सारे दे रखे हैं हमारे को, ठीक है ना। वहां से आप देख लोगे। वोटिंग किस पर होगी? एक तो ये जो एक्शंस लिस्टेड इन 28(1), तो 28(1) में कोई डिसीजन लिया है क्या जो A2M में दिए हुए हैं? उसके अलावा एनी एक्शन अदर देन दोज लिस्टेड इन सेक्शन 28(1) रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द कमेटी मे बी कंसिडर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी। और वोट ले लेगा जो भी कमेटी में प्रेजेंट होंगे मीटिंग में ऑन एनी आइटम लिस्टेड फॉर वोटिंग आफ्टर डिस्कशन ऑन द सेम, ठीक है। बाद में क्या होगा? जब मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी तो आरपी विल अनाउंस द डिसीजन कि भाई डिसीजन क्या हुआ, अलॉन्ग विद नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, जिन्होंने फॉर में वोट किया, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया और जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। अब मान लो मेंबर नहीं आते तो ये क्या करेगा? ये सर्कुलेट करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी एंड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इफ एनी विद इन 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग, ठीक है। और उनसे वोट मांगेगा जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। He will seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting by electronic voting system, ठीक है, where the voting shall be kept open for at least 24 hours। तो ये 24 hours के लिए ये यहाँ पर वोटिंग खुली रहेगी। तो भाई आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो, आपने नहीं वोट किया वहां पर, आगे चलते। और जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है ये हमारा चल रहा है 24।
the authorized representative, the the authorized representative shall circulate the minutes of the meeting received under sub-regulation 5. Sir, one small doubt, sir. Yes, yes. Suppose some members are not present in the meeting. For them, again, they are sending voting through electronic voting. Yes, yes. So they are allowed. Why it should be, sir? Because they are not in quorum. Why they have to vote, sir? No, they are aware that meeting is going on. Maybe they are not physically present because of limitation of time or something else. So they can electronically vote. So suppose they vote against the decision. They may vote either way. Definitely, they may vote in favor or against. ये है actually some decisions they require say 66% majority. ठीक है ना, ये 28-1 वाले जो डिसीजन है 66% से कम पे हो ही नहीं सकते, उसमें उतना वोटिंग पावर आया ही नहीं मीटिंग में, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा ना, अदरवाइज तो डिसीजन ही नहीं होगा. ये बात है. जैसे होता नहीं है, आप भंडारे में अगर कोई पूरी खाने नहीं आया, पड़ोसी है, तो पड़ोसी क्या दे के आते हो ना आप, अरे यार बच गए पूरी, उनके यहाँ दे आओ, चलो पड़ोसियों को. तो अब इसमें जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, इट शैल सर्कुलेट द मिनट्स of the meeting received under sub-regulation 5 to creditors in a class and announce the voting window at least 24 hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least 12 hours. ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया है written 12, 24, 12 hours to form an initial opinion, then 24 hours for voting instructions, and voting window is open for 12 hours. So you can memorize it 12, 24 and 12. This is for voters in a class. ठीक, आगे आता है. ये यहाँ पर भी आ जाएंगे ना भाई. क्या है ये जो इनके बिहाफ पर, ये जो जैसे जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, अब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मे और मे नॉट बी रिजाइडिंग इन द सेम सिटी, दे मे बी इवन आउट ऑफ कंट्री, सो दे विल वोट इलेक्ट्रॉनिकली ओनली. तो द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ओनली ही इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, बट ही कैन नॉट डिसाइड ना ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सो ही हैज टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम. वो इंस्ट्रक्शंस के लिए उनको बताएगा कि ही विल सर्कुलेट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग received under sub-regulation 5 to creditors in a class and announce the voting window at least 24 hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least 12 hours. So 12 hours for forming an opinion, then 24 hours for voting instructions before the window opens for voting instructions, and voting window is open for 12 hours. Then voting by authorized representative. Ab voting by authorized representative in two ways. सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3A. सबसेक्शन 3A में कौन से केसेस आते हैं, जो 12A वाला, वो 12A के लिए कैसे है, आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जब मैंने सेक्शन वाइज कवरेज में भी ये बताया था कि सेक्शन 12A से विद 90% अप्रूवल यू कैन विदड्रॉ योर एप्लीकेशन इवन आफ्टर एप्लीकेशन इज एडमिटेड एंड CIRP स्टार्टेड. ठीक है, इन दैट केस इफ देयर आर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, then he will act as per their individual votes. So individual votes will be counted for the purpose of subsection 3A, ठीक है, of 25A. But for subsection 3, more than 50 means 100%. ठीक है भाई. जैसे होम बायर्स, अब होम बायर्स में 100 होम बायर्स हैं, 100 में से 60 ने कह दिया कि भाई फेवर में वोट करना, 40 ने कह दिया अगेंस्ट में वोट करना, तो वो फेवर का ही वोट माना जाएगा पूरे टोटल डेट का. ठीक है, लेकिन जो 12A वाला है उसमें इंडिविजुअल कंसिडरेशन होगा. इतना ही है इसका मतलब. वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रोवाइड ईच मेंबर ऑफ द कमेटी द मीन्स टू एक्सरसाइज इट्स वोट बाय आइदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ठीक है, तो दोनों तरह से इसको वोट कर सकते हैं. वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम. ठीक है,
वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम सिक्योर सिस्टम, ठीक है, बेस्ड प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, recording of votes of the members and the number of votes polled in favor or against. Normally such exercise is assigned to professional agencies such that the voting exercise by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security. And the expression secure system means computer hardware, software and procedure. ठीक है भाई, ये सब सिक्योर होना चाहिए, इसमें कोई खास बात इसमें नहीं है। अगला है कंडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करने हैं, कब करने हैं? विद इन 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बट नॉट लेटर देन 47th day, ठीक है। ही विल अपॉइंट 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। उनको क्या करना है? फेयर वैल्यू निकालनी है और लिक्विडेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कौन कौन से नहीं होंगे? दोज हु आर नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन से? रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दी 5 years preceding the insolvency commencement date, और पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द IPE of which the RP is a partner और डायरेक्टर, ठीक है। तो these are the disqualifications for valuers. Now transfer of debt due to creditors. Suppose there is an assignment of a debt, ठीक है। तो in this case both the parties they will provide the IRP और RP the terms of such assignment और ट्रांसफर, वो जो ट्रांसफर डीड होगी, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द असाइनी और ट्रांसफर, ठीक है ना। जो एक फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल डेट को दूसरे में असाइन कर दिया, ठीक है ना, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा ना COC में, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोविजन शैल नोटिफाई ईच पार्टिसिपेंट एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एनी रिजल्टेंट चेंज इन द कमिटी विद इन 2 days ऑफ सच चेंज, ठीक है। तो ऐसा कोई चेंज होगा तो 2 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देंगे, ठीक। सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ही मे सेल अनएनकम्बर्ड एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस if he is of the opinion that such a sale is necessary for a better realization of value under the facts and circumstances of the case, ठीक। जो एनकम्बर्ड है उनको तो नहीं बेच सकता नेचुरली। एनकम्बर्ड कौन से? जो जिन पे ऑलरेडी सिक्योरिटी क्रिएटेड है। लेकिन जो अनएनकम्बर्ड है, अगर उस पर जरूरत है, इफ सेल इज नेसेसरी फॉर बेटर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, तो उस केस में बेच सकते हैं। इसमें क्या चीज हो सकती है? मान लो कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज कोई CIRP में आ गया, अब वहां पर सेब पड़े हुए हैं, अब मान लो सेब सड़ जाएंगे, उसको लगेगा, ठीक है ना भाई, CIRP तो चलेगी 180, बेच सकता है, अभी मार्केट है, बेच दो, इस तरह से। एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स। आगे प्रोवाइडेड, वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ये शैलेश जी आप म्यूट कर लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग CIRP पीरियड in aggregate under this sub regulation shall not exceed 10% of the total claims admitted by the IRP, ठीक है। तो इस पे लिमिटेशन है कि 10% से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, 10% ऑफ द टोटल क्लेम्स, ठीक है। और इसमें अप्रूवल चाहिए आपको 66% से, ठीक है। एंड ए बोनाफाइड परचेजर ऑफ एसेट सोल्ड शैल हैव ए फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल, ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, शेयर होल्डर एग्रीमेंट वगैरह, ये सब चीज। उसके बाद में असिस्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है फॉर एन ऑर्डर सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उसको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में कोई दिक्कत आ रही है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा कि मिलॉर्ड मुझे जो है लोकल असिस्टेंस दी जाए, ठीक है, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे असिस्टेंस दे। फिर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, an application for withdrawal under section 12 may be made to the adjudicating authority। ये कब कब हो सकती है? ये हो सकती है कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, ठीक है ना। अगर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC है बाय द एप्लीकेंट थ्रू द IRP, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC बाय द एप्लीकेंट थ्रू IRP और RP, ठीक है। और लेकिन अगर इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले हो चुका है, ठीक है, इन्विटेशन फॉर EOI हो चुका है, तो फिर एप्लीकेंट विल स्टेट द रीजंस कि भाई क्यों विड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है। और इसमें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हो तो आपको बैंक गारंटी देनी है, क्योंकि कुछ खर्चे हो चुके हैं अब तक, भाई आपके CIRP शुरू हो चुकी है, तो जब CIRP शुरू हो गई तो जो IRP के खर्चे हैं वो देने पड़ेंगे आपको।
जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड वो देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज मेड अंडर क्लॉज ए, द IRP शैल सबमिट द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट विद इन 3 days ऑफ इट्स रिसीप्ट। 3 दिन के अंदर जो है वो IRP एप्लीकेशन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा, ठीक है। एंड वेयर एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज अंडर क्लॉज B, द कमिटी शैल कंसिडर द एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ इट्स रिसीप्ट, ठीक है। भाई देखो, पहले अगर COC से पहले है, ठीक है ना, 3 सिचुएशन है। पहला बिफोर COC, अगर बिफोर COC है तो उस केस में तो एप्लीकेंट और RP दो ही चीजें, एप्लीकेंट और IRP, ठीक है ना। एप्लीकेंट ने IRP को IRP के थ्रू एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबमिट हो गई। जब COC हो गई फॉर्म, COC फॉर्म होने के बाद में 12A की एप्लीकेशन है तो नेचुरली कमेटी विल ऑल्सो कंसिडर, कमेटी को 7 दिन का टाइम दे दिया विद इन 7 days ऑफ इट्स रिसीप्ट, ठीक है। और अगर रेगुलेशन 4 में है, रेगुलेशन 4 में है तो क्या कहता है ये 90% मेजोरिटी से इसको अप्रूव करना, ठीक है ना। और ये भी 3 दिन में विद इन 3 days ऑफ इट्स अप्रूवल ये देनी है। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव कर सकती है। और अगर एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया, हाँ ठीक है। ये था हमारा चैप्टर 9, where the application is approved under sub-regulation 6, the applicant shall deposit an amount towards the actual expenses incurred for the purpose। अब ऐसा है कि आप एप्लीकेशन रिवोक कर रहे हो, उस टाइम में कुछ खर्चा हो चुका है, IRP की फीस वगैरह देनी है, तो उसके लिए आप बैंक गारंटी दोगे, ठीक है ना। वो जो भी एक्सपेंसेस है टुवर्ड्स द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, और वो आपको बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फेलिंग। और अगर ये नहीं डालोगे तो जो बैंक गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब अगला चलते हैं हम चैप्टर 9, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है, तो जो अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ये इसमें शामिल है, फीस पेबल टू AR शामिल है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ AR है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू ए पर्सन हुज राइट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द मॉरेटोरियम। ये कौन लोग हैं? 14 में हमने पढ़ा था, अगर किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है आपने, उसको खाली नहीं करवा सकते, ठीक है ना, पढ़ा था ना 14। एक बार सेक्शन 14 दोबारा निकाल लीजिए। तो सेक्शन 14 में कहता है, ये पॉइंट आप देखिए डी, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड बाय और इन द पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब कंपनी ने किराए पे ले रखी किसी की प्रॉपर्टी, किराया वो दे नहीं रहा, अब जो किराया नहीं दे रहा ना ये खाली करवा सकता क्योंकि सेक्शन 14 मॉरेटोरियम लगा हुआ, तो इसके राइट्स जो हैं, जो लैंडलॉर्ड है उसके राइट्स प्रेजुडिशियली इफेक्ट हो रहे हैं ना ऑन अकाउंट ऑफ मॉरेटोरियम, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में। ठीक है जी, आगे चले। 31 आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है जी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन और बाय द IRP टू द एक्सटेंट रेटिफाइड, ठीक है ना, जो IRP ने खर्चे किए जो रेटिफाई हो गए वो भी इसमें। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसमें? एक्सप्लेनेशन कहता है 33 में कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फीस टू बी पेड टू IRP, फीस टू बी पेड टू IPE इफ एनी, एंड फीस टू बी पेड टू प्रोफेशनल्स इफ एनी, एंड अदर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय द IRP, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपकी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कॉस्ट है, ये 33 में, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ द IRP में ये सारी चीजें शामिल है। अगला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉस्ट, RP की क्या कॉस्ट होगी? द कमिटी शैल फिक्स द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन और बाय द RP एंड द एक्सपेंसेस शैल कॉन्स्टिट्यूट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये भी उसका पार्ट बनेगी, है ना, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट IRPC का पार्ट बनेगी।
और एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फीस टू बी पेड टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, fees to be paid to IPE and fees paid to professionals if any another expenses to be incurred by the resolution professional. उसके बाद में disclosure of cost, तो IRP और RP as the case may be shall disclose item wise insolvency resolution process cost in such manner as may be required by the board. ठीक है, अब आगे आ जाता है रेजोल्यूशन प्लान। कितना हो गया? अच्छा, तो बताइए कितना का, अभी आगे इसको कल करें क्या? क्योंकि ये तो लंबी राम कथा चलेगी, कल कर लेंगे इसको। मैं क्या कल कर लेते हैं सर, है ना? बिल्कुल सर, हाँ बहुत इंटेंस हो गया है, एकदम से बड़ा इंटरेस्टिंग है बट क्वाइट इंटेंस। हाँ बट पता क्या है जी, इस पे ना क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग, तो